Hello students, today I have Robert Cross poem I am getting old now. You see, Robert Cross was a Canadian poet and novelist. He was born in Whistler, Alberta. Now, the hallmark of his work is that it extends the boundaries of conventional forms, textures, and meanings, and that enables the language to create possibilities of its own. He has written number of novels also, and the famous ones are Words of My Roaring, written in 1966, then Stud Horseman, written in 1969, Gone Indian, which was published in 1973. Then he has some anthologies also to his credit. One is The Ledger, published in 1975, then Sad Phoenician 1979, Too Bad, which was published in 2010, and the Horn Books of Rita K 2001, and Completed Field Notes, and the Long Poems of Robert Cross, which was published in 1989. He died in a car accident in 2011. You see, this poem begins with the poet's awareness of his advancing age. As he grows old, the memories of the past pain him since they are lost. And the first part of the poem symbolizes his dream about his childhood and his love and affection towards his mother. So the first stanza symbolizes his love for his mother. He recalls in a dream the day when he was standing in the garden over the hill with his mother and was playing amidst the pea plants. Later she held the peas in her apron, which they had picked together. He could see the love and affection of the mother in her eyes when she compares him to a bad weed, implying that he grew very fast and he is like a naughty boy, bad boy. So this is sad in an endearing way. Then the second part of the poem symbolizes that he is close to death. He realizes the inevitability and accepts death as a fact. The poet seems to suggest that he is waiting for death, watching out for it as one waits to meet a long lost friend you had almost forgotten. As he thinks about death, he is again transported back to his old memories and dreams of his happy childhood. So the poem is so simple. So the important point or the central idea of this poem is that the poet is aware of his advancing in years. Most of the people, they remain childish. They remain engrossed with the worldly affairs and all that till death knocks at their door. But here the poet is fully aware of this thing, that he is advancing in years. And in the second part of the poem the poet accepts death. है ना, वो डेथ को एक्सेप्ट करता है और उसको डेथ की वो वेट कर रहा है जैसे कोई अपने बिछड़े हुए फ्रेंड की वेट कर रहा होता है, तो उसी तरह से वो वेट कर रहा है, उसको लगता है कि डेथ आने ही वाली है और आ गई है ना. सो लाइक दैट द पोएम गोज ऑन. ऑफ कोर्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम shows his love for his mother. So let's see the text. I am getting old now. I can tell. I am getting old now. The poet is aware. Poet अच्छे से जानता है कि वो अब बड़ा हो रहा है. I can tell I dream a lot of my mother. He tells us that in his dream he thinks his mother comes.
I can tell I dream a lot of my mother. So he tells us now he is in adult age, है ना, rather he is old. तो he says कि in dream he sees his mother, है ना, in dream सपने में उसको अपनी मदर के सपने बहुत ज्यादा आते हैं. In my dream last night, she was in the garden over the hill, है ना. तो she was in the garden over the hill. तो क्या बता रहे हैं कि last night he had a dream, और उस ड्रीम में क्या था, she was in the garden, वो गार्डन में थी. कौन से गार्डन में, which is over the hill, जो उस पहाड़ी के ऊपर है. बिहाइंड आवर हाउस, उनके घर के पीछे पहाड़ी के ऊपर गार्डन में उसने अपनी मदर को देखा. कहाँ देखा, इन ड्रीम, है ना. शी वॉज स्टैंडिंग, वहां वो खड़ी थी. आई वॉज प्लेइंग इन पी वाइन्स. वाइन्स मतलब बेलें, और मैं खेल रहा था. कहाँ खेल रहा था, मटर की बेलों के साथ खेल रहा था. We were both happy, हम दोनों ही खुश थे. Neither of us would move, है ना, हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला. In the dream perhaps, शायद ये ड्रीम था इसलिए हम दोनों में से कोई भी नहीं हिला. I was not playing, मैं खेल नहीं रहा था. I was kneeling to pick peas, मैं तो झुक रहा था. kneeling मतलब झुक रहा था मटर तोड़ने के लिए. My mother held in her apron the peas, और वो जो मटर तोड़ रहा था बेलों से, उसकी मदर उन मटरों को अपने एप्रिन में इकट्ठा कर रही थी. We had picked together, ये स्पेलिंग रॉन्ग है ना, GATHER. We had picked together, तो जो मटर उन दोनों ने इकट्ठे तोड़े थे वो अपने एप्रिन में उसकी मदर इकट्ठी कर रही थी. शी वॉज स्टैंडिंग स्टिल, है ना, वो एकदम सीधी ही स्टिल खड़ी थी. स्टिल खड़ी थी मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही थी, क्योंकि ड्रीम भी है ना, मतलब इसलिए ऐसा शो कर रहा है कि बीच बीच में जैसे बता रहा है, जैसे वो कह रहा है कि neither of us would move, हम दोनों में से कोई भी मूव नहीं किया, शायद ड्रीम था इसलिए, है ना. और अब यहाँ पर कह रहा है शी वॉज स्टैंडिंग स्टिल, वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी. आई न्यू शी वॉज वॉचिंग मी, कहते मुझे मालूम है कि मदर स्टिल क्यों खड़ी थी, क्योंकि वो मुझे देख रही थी. शी वॉज वॉचिंग मी ग्रो, मदर जैसे कई बार माँ जो है अपने बच्चे को निहारने लगती है, तो उसको लग रहा है कि उसकी मदर जो है उसको निहार रही थी. वॉचिंग देखो प्लेन वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग हम इसके कोनोटेशन लेके करें बात, भाव को लेते हुए अगर हम इसकी बात करें तो हम कहेंगे कि माँ अपने बेटे को निहार रही थी. वो ये देख के खुश थी कि उसका बेटा बड़ा हो रहा है. लाइक ए बैड वीड, ये तो बेटा अब यूं क्या है कि भी ऐसे जैसे बैड वीड का अब हिंदी ट्रांसलेशन करें तो क्या कहेंगे हम, कि एक बुरी खरपतवार की तरह से. वीड क्या होता है, खरपतवार. खरपतवार का मतलब होता है कि अनवांटेड प्लांट, जो ग्रो नहीं किए जाते, जिनको सीड नहीं किया जाता, सीड नहीं डाले जाते जिसके लिए, और अपने आप से ग्रो करते हैं, दैट इज कॉल्ड खरपतवार, है ना, बैड प्लांट. तो अब यहाँ पर मदर अपने बेटे को कह रही है कि भी वो के बारे में सोच रही है कि वो ऐसे ग्रो कर रहा है जैसे खरपतवार करती है. यानी कि इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मदर यूं कह रही है, जैसे मदर अक्सर यूं कहती है कि देखो कितना बड़ा हो गया, है ना, अपने बच्चों को कहती है कि भैया इतना बड़ा हो गया, अकल नहीं आई अभी, है ना, लाइक दैट. मतलब द पॉइंट इज दैट शी इज सेइंग दैट हर सन इज सो नॉटी. शी लाइक टू से दैट प्लीज्ड हर, और उसको ऐसा कहना अच्छा लग रहा है, उसको ऐसा कहना अच्छा लग रहा है कि भी वो जो है एक बैड वीड की तरह से ग्रो कर रहा है. उसको ऐसा अच्छा लग रहा है. आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, लेकिन क्या है, अब वहां पर बात खत्म हो गई, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट, यही फर्स्ट पार्ट था पोएम का, जहां पर हम सिंबलाइज क्या कर रहा है पोएट,
his love for his mother. है ना? He is talking about the dream which he had. I am getting old now. लेकिन अब तो पोएट को अवेयर्ड है, फुली अच्छे से अलर्ट है, उसको पता है कि ही इज एडवांसिंग इन, he is reaching, he is standing on the threshold of old age. I won't say I am happy. क्या कह रहा है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुश हूं, है ना? serene is an adequate word. serene का मतलब बस शांत हूं, मैं खुश नहीं कहूंगा. I won't say that I am happy. serene is an adequate word. serene कहना सही शब्द होगा, इस मौके पे serene कहना सही शब्द होगा. death is not quite. death quite नहीं होती. the enemy it was. ये enemy होती थी. it's a kind of, ऐसा लोग सोचते हैं, death is not quite, the enemy it was, लोग उसको enemy समझते हैं. इट्स ए काइंड ऑफ वॉचिंग. लेकिन पोइट के लिए क्या है भाई? पोइट के लिए भाई, अगर जैसे सपोज पोइट भी है तो जब वो यंग था तो उसको भी लगता था डेथ एनमी है, लेकिन अब क्या लग रहा है कि इट इज ए काइंड ऑफ वॉचिंग. वो सिर्फ उसको देख रहा है. देख रहा मतलब इंतजार कर रहा है कि भाई आनी है, मतलब उसको ही रियलाइजेस कि भाई डेथ इज इनएविटेबल, नो वन कैन एस्केप डेथ. डेथ बिगिंस टू सीम अ फ्रेंड that one has almost forgotten. है ना? कि डेथ क्या लग रही है? डेथ एक फ्रेंड की तरह से लग रही है उसको, वो फ्रेंड जिसको वो लगभग भूल गया था, है ना? वो फ्रेंड जिसको वो लगभग भूल गया था. अब उसको, क्योंकि अब ओल्ड एज में पहुंच गया तो उसको पता है कि भी मैं डेथ से बच नहीं सकता, डेथ ने तो आना ही आना है. तो इसलिए क्योंकि वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुका है, वो इनएविटेबिलिटी मतलब होनी ही है, तो भाई अब वो उसको डेथ एक फ्रेंड की तरह से लगने लग गई, है ना? वो फ्रेंड जिसको वो लगभग भूल गया था और अब मिलेगा इतने सालों बाद. देन रिमेम्बर्स अगेन, इन माय ड्रीम लास्ट नाइट आई वाज प्लेइंग इन द गार्डन. फिर उसको याद आने लगता है क्या? वही उसका ड्रीम जो उसने फर्स्ट पार्ट में बताया कि लास्ट नाइट वो गार्डन में खेल रहा था. सो दिस वाज अ सिंपल पोएम, है ना? दिस पोएम जस्ट शोज पोएट्स अवेयरनेस ऑफ द डेथ, है ना? एंड ही कांट फॉरगेट इट. सो that was all about it. I hope you understand it.